Student, today now we will see question number 33, and here we have a preparation of cash flow statement. That means in this question you will get all three activities, that is of your activity, operating activity, investing activity and financing activity. This question may be in your book, this question may be of your 32 number question or 31 number question. You can search the question first of all in your book. It is preparation of cash flow statement. The question is given at the beginning: equity and liability, shareholder fund, share capital is given 2,50,000 at the end of the year and 2 lakh at the beginning of the year. Reserve and surplus is given at the beginning of the year, it is 82,000, at the end of the year 8 lakhs 1,83,000. Now non-current liabilities, long-term borrowing is given at the beginning 50,000 and at the end it is given 80,000. Current liabilities you have given at the in this trade payable is given you 1,30,000 and 1,62,000. So you can search the question and read it carefully. Now we are going to start it. So the first amount we have to write here, net profit before tax. So I am going to write it. It is what? It is our, here I am going to write, it is net profit, PROFIT, profit before tax, BEFORE, before tax. So here we will write note number 1. आपको मालूम है net profit before tax we have to calculate. At the end here I am going to calculate, and at the end I am going to write. I am not going to shift it so that screen will be blur. It is clear. Now this we will write after calculating the net profit. Let me calculate now. You just see I have shifted my paper on the top. Here I am going to calculate. So here we have your note number 1. So you can see in this we have to calculate the profit. So profit and loss balance on 18 is given. You can see your profit and loss on 2018 को it is given you, it is 1,83,000 given दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में. एंड प्रॉफिट एंड लॉस योर ऑन 2017 ये आपको दिया हुआ है 82,000. सो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा. दैट इज ऑफ योर नेट प्रॉफिट, नेट PROFIT, profit before tax, BEFORE, before your tax, and it is what 1 lakh. You have to subtract it, पुराने वाले में से. So it is 1,000. It is clear. Now we will take this 1,01,000 at the top in our question. Then here you can see I am going to write it. So here it is, we have total amount, we will put 1 lakh. It is 1,01,000. Clear. Now adjustment for non-cash and non-operating activities, you know it very well. We have to adjust AD, JUST, MEST, adjustment for non-cash and your non-operating, non-OPERATING operating your items, ITEMS items. In this we have to add, हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा देखिए ध्यान से. पेड इंटरेस्ट, we have paid your interest paid, INTEREST, interest, PAID, paid. How much interest paid is there? It is of your 9,000 interest paid. So this amount if you will calculate, it will be of equals to your 1,10,000. 1 lakh your 10,000. And what amount is this? It is a operating profit before working capital charge. This one is our operating profit. This is our operating profit, OPERATING, operating profit, PROFIT, profit before working capital, BEFORE, before, WORKING, working capital, 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 CHANGES, changes. It is clear. This profit our before working. Now what are the things we have to do in this? अब वही पता है आपको, decrease in current assets
and increase in current liabilities is to be added. So in this we have to add that is decrease in current asset. We will add DECREASE, decrease in CURRENT करंट एसेट्स, ASSETS एसेट. अब देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं. सो वो हमारे पास हैं सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री डेप्टर्स, DEBTORS डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स हमारे पास कितने हैं बेटा, देखिए 40,000 के सन्ड्री डेटर्स हैं. उसके बाद हमको इसमें ऐड क्या करना है, ऐड में इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ भी ऐड होती हैं. वी हैव टू add in this, that is our INCREASE, increase in your CURRENT current, LIABILITIES liabilities. सो लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में TRADE ट्रेड, PAYABLES ट्रेड पेबल्स, and it is given you your 32,000. so if you will add it, it will be equals to your 72,000, and the final amount you will get here, that will be of your 1,82,000. इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द थिंग्स फ्रॉम हेयर. सो इट इज़ लेस, क्या चीज़, डिक्रीज इन करंट एसेट और increase in current asset and decrease in current liabilities. It is clear. So here we will write increase in current assets. Your INCREASE, increase in your CURRENT current, ASSETS assets. So in this we have two assets increased, that is of your inventory, INVENTORY. इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है, देखिए 56,000 का इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया. और बिल, योर बिल रिसीवेबल, RECEIVABLE, बिल रिसीवेबल्स भी हमारे पास इंक्रीज हो गया, कितने का, 2,000 रुपीज़ का. इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ लिख लेते हैं. सो इट इज़ वॉट 58,000. अब इसको करना क्या है बेटा, यहाँ ऐड मत करके देना धोखे से, ये सब्ट्रैक्ट करना है. इट इज़ क्लियर. इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट इट, इट विल बी ऑफ योर 1,24,000 रुपीज़. इट इज़ क्लियर. अब ये जो 1,24,000 आया है, ये क्या चीज़ आ गया आपका, 1,24,000 आपका आ गया net cash flow from operating activity. This is of your net cash flow, net cash FROM from operating, OPERATING, operating ACTIVITIES activities. It is clear. Now we will start with number B. अब किससे शुरू किया जाएगा, बी नंबर से. ये वाला कौन सा था बेटा, ध्यान से देखिए, ए नंबर एंड बी नंबर. बी नंबर में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो FROM फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, INVESTING इन्वेस्टिंग, योर ACTIVITIES एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट का परचेज होता है. सो PURCHASE, परचेज ऑफ योर फिक्स एसेट, FIXED फिक्स्ड एसेट्स, ASSETS एसेट्स. परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यू हैव गिवन 1,57,000. भैया ये नेगेटिव अमाउंट होगा, क्योंकि आपका पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो. परचेज करते समय पैसा बाहर जाता है. उसके बाद क्या हो रहा है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पर, योर PURCHASE, परचेज ऑफ योर नॉन करेंट, परचेज ऑफ नॉन CURRENT करेंट इन्वेस्टमेंट, INVESTMENTS इन्वेस्टमेंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आपके पास नेगेटिव का आ जाएगा, आपके पास 13,000 रुपीज़. क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 13,000 रुपीज़. अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद अमाउंट जो आएगा, वेट लेट मी write it by dark pen, that was the amount of your net cash flow from operating activity. अब दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 1,70,000 रुपीज़
और ये जो 1,70,000 नेगेटिव बैलेंस है बेटा, ये देखिए 1,70,000 रुपीज़ जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये आपका आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो यू कैन राइट, ईदर यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन राइट नेट कैश यूज्ड in investing, 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 activitties. अब हम लोग सी नंबर वाला कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर सी यू कैन सी नंबर वाला कैलकुलेशन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट FLOW फ्लो फ्रॉम FROM फ्रॉम your FINANCING financing activity, your ACTIVITIES activities. It is clear? So in this, first of all, financing में issue of share हो जाएगा हमारे पास. So we have here ISSUE, issue of share. अब issue of share करते हैं, जब आप shares issue करते हैं क्या मिलता है आपको? पैसे मिलते हैं. तो आपको पॉजिटिव हो गया, 50,000 का शेयर इशू कर दिया. देन प्रोसीड फॉर डिवेंचर, PROCEEDS, डिवेंचर भी 15% डिवेंचर, FROM फ्रॉम योर 15% डिवेंचर का मतलब है वो डिवेंचर जो इशू किए जा रहे हैं वो 15% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू किए जा रहे हैं. सो ये इनसे आपको कितने पैसे मिल गए? 30,000 यू विल गेट. नाउ इंटरेस्ट पेड, INTEREST, इंटरेस्ट पेड. भैया शेयर्स के लिए पैसे लिए तो उसका इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा. तो ये 9,000 रुपीज़ इज़ ऑलरेडी गिवन यू, इट इज़ अ नेगेटिव बैलेंस. नाउ दिस अमाउंट यू विल गेट, ये वाला अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल बी इक्वल्स टू योर कैश फ्लो फ्रॉम 30, 50, 60, 70, 80, 9 चलेगा 71 हो गए, 71,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए. एंड दिस इज़ योर 71,000 रुपीज़. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ नेट कैश यूज्ड. इट इज़ योर नेट CASH कैश फ्रॉम FROM फ्रॉम फाइनेंसिंग, FINANCING फाइनेंसिंग, ACTIVITIES एक्टिविटीज़. इट इज़ क्लियर? अब हमको क्या करना है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब भैया नेट इंक्रीज भी इसमें देख लो, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो हमने यहाँ लिख लिया ये आपका नेट इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज इन योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CASH कैश इक्विवेलेंट, VALENTS इक्विवेलेंट्स. कितना है नेट कैश इक्विवेलेंट? इट इज़ गिवन यू 25,000 रुपीज़. इट इज़ क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू ऐड इन दिस. अब हमको ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बिगनिंग है वो हम इसमें ऐड कर देंगे. तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या चीज़? कैश एंड कैश, योर कैश एंड योर कैश इक्विवेलेंट, VALENTS इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, in the beginning, in the BEGINING, beginning of the PERIOD पीरियड. कितना था इंक्रीज वाला हमारा? यू जस्ट सी योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग में 70,000 दिया हुआ है हमको. अब ये हमारे सारे अमाउंट एक जगह इकट्ठे हो गए. It is clear? Now you can see here, देखिए 1,24,000 में से 24 में 71 प्लस कर दिया आपने, तो ये हो गया 71, 81, 82. क्लियर? तो 1,85,000 में से 1,70, 85, 24, 75, 70, 80, 90, 1,95,000 में से 1,70,000 घटा दिया तो आपका ये वाला फिगर आ गया था, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये फिगर हमारे पास आ गया, ये वाला फिगर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उसमें हमने ऐड कर दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग पीरियड जो शुरुआत में था. तो अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के पास रिजल्ट आ रहा है 95,000. हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 95,000.
थाउजेंड रुपीज़। तो ये जो 95,000 रुपीज़ हमारा रिजल्ट आ गया, लेट मी ड्रॉ द लाइन ऑल्सो, दिस रिजल्ट इज़ एक्चुअली, ये जो 95,000 हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट हमारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम यार एक्चुअली में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, और हम बोल सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा हो गया। तो ये हमारे पास आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड और कैश इक्विवेलेंट EQUIVALENT कैश इक्विवेलेंट एट द एंड END एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड PERIOT पीरियड। ये हमारा आंसर होना चाहिए। इट इज़ क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज little lengthy. Oh sorry, you can see once again, I am going to explain the below part. You can see here you can see these three addition, this 1,24,000 में से आप 71,000 प्लस कर दीजिए तो 1,95,000 हो जाएगा। उसमें से ये नेगेटिव अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25,000 आ रहा है। ये जो 25,000 है ये आपका है नेट इंक्रीज, INCREASE इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। जो हमारा कैश था वो इतना बढ़ गया और उसके बराबर की चीज़ें। इट इज़ क्लियर। अब इंक्रीज़ जो हुआ है इस साल, देखिए इस साल इंक्रीज़ कितना हुआ, इस साल इंक्रीज़ हमारे पास हो गया 25,000। इस 25,000 में हमने ऐड कर दिया जो बिगनिंग में हमारे पास था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। जब दोनों को कर दिया तो हमें पता चल गया कि एंड ऑफ द पीरियड, लास्ट साल के आखिरी में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इतना आ गया। तो ये कैश हमारे पास नेट कैश जो था वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास पता चल गया। नाउ यू कैन नोट इट डाउन।